آج کے موجودہ دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ والدین کے سامنے اولاد کا ہے۔ اولاد یہ والدین کے لیے سب سے خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں، بہت بڑی خوشی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اولاد ہوتی ہے وہ گھر بڑا خوشحال گھر مانا جاتا ہے۔ مال و دولت اولاد کے سامنے ہیج ہے، اس لیے اولاد پر گفتگو کرنا آج کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اولاد کو لے کر اور ان کے حالات کو لے کر اکثر ماں باپ پریشان رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا تعلق اداروں سے ہے، سماج سے ہے، فیملیز سے ہے، تو ہمارے سامنے مختلف قسم کے ایسے لوگ آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، مختلف عمر کے اور مختلف حالات کے۔ اس میں جو قدر مشترک کامن پوائنٹ ہے وہ یہ کہ بچوں سے عام طور پر لوگوں کو جو توقعات ہوتی ہیں، جو امیدیں ہوتی ہیں اور بچوں کو جس انداز میں ہونا چاہیے وہ بچے پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ کبھی ماں باپ، گھر والے، گارجین مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی وہ سخت گیر ہو جاتے ہیں، کبھی انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنی بنی بنائی پوری ساکھ کھو دی ہے۔ عجیب کشمکش کے شکار ہوتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی طبیعت میں اولاد سے محبت رکھی ہے۔ کوئی انہیں چھوڑ نہیں سکتا ہے، بگڑ بھی جائے تو ان سے دوری نہیں اختیار کر سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج کے سماج میں سب سے زیادہ جو کڑھن ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، وہ گھر والوں کو بچوں سے ہوتی ہے۔ خوش بھی بچوں سے ہوتے ہیں اور تکلیف بھی بچوں سے اٹھاتے ہیں۔ احساس اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا بچوں کے سامنے ہوتا ہے یا بچوں کے بالمقابل ہوتا ہے۔ آج کے ان حالات میں ہمیں اس پر بات کرنی چاہیے۔ اس لیے کرنی چاہیے کہ جو مختلف حالات ہیں اس میں مختلف تجربات کام آئیں گے۔ آئیے ہم سب سے پہلے مختلف حالات کو دو تین بڑے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم دائرہ بنانا شروع کریں تو پہلا دائرہ ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرنا جانتے، گھر میں ان بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں جو ان کی رکھوالی کرتے ہیں، جو ان کے محافظ ہوتے ہیں، جو ان کے رشتے میں ان کے بڑے قریبی اور سرپرست ہوتے ہیں۔ ان کی انہیں کوئی اہمیت نہیں، کوئی ان کا لحاظ نہیں۔ یہ ایک دائرہ ہے، بڑا سنگین دائرہ ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں والدین کو جو نصیحت کرنی چاہیے، بہت شکریہ۔ قرآن مجید نے جس انداز میں ہمارے اور آپ کے لیے ہدایات دی ہیں اور ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو اسوہ ملتا ہے، نمونہ ملتا ہے، وہ ہم بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ کس طرح کی اولاد کے لیے قرآن مجید میں مختلف مثالیں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں پیش کی ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کرام کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بڑوں کی ذمہ داری کیا ہے اور انہیں کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور نہ کریں، وہ ذمہ دار سمجھیں اپنے آپ کو، وہ سمجھیں اس بات کو کہ ان کی ذمہ داری برقرار ہے۔ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان بچوں کو اچھی باتیں سکھائیں۔ اگر بچہ نافرمان ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ان سے نہیں سیکھنا چاہتا ہے۔ جس سے بچہ بددل ہے، جس سے دور ہے، جس سے مطمئن نہیں ہے، بچہ ان کی بات نہیں سنے گا۔ ایسی صورت میں بچوں کے دوستوں میں ایسے بچوں کو تلاش کریں جو اچھے ہوں۔ بچوں کو ان لوگوں سے ملاقات کروائیں جو لوگ اچھے ہوں،
और नहीं तो हम बच्चों को ऐसी महफिलों में ले जाएं, ऐसी जगहों में ले जाएं हमारे साथ मौजूद जहां उनके अच्छाई मिल सके और ऐसे नताइज बच्चों के सामने वाकयात की शक्ल में पेश करें तो बहरहाल आज की या उन्हें रूबरू कराएं ऐसे वाकयात से शौका का शुक्रिया, जहां नाफरमान बच्चों के अंजाम बहुत बुरे होते हैं। का शुक्रिया जिन्होंने कुरान मजीद की आयतें हैं, अहादीस हैं, वाकयात हैं, इंशाअल्लाह तारीखी वाकयात हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, उन्हें सामने पेश करने की जरूरत है। यूट्यूब चैनल उस पे आ जाएगा। इस दायरे के लिए सबसे बड़ा काम यह है वालिदैन ये समझें, घर वाले ये समझें कि उनके लिए कामयाबी के इम्कानात मौजूद हैं। कामयाबी उनकी नहीं जाएगी लेकिन उसमें वक्त लगेगा, उसमें थोड़ी सलाहियत लगेगी, थोड़ा उनका पैसा भी खर्च होगा, स्पेशली पैसा खर्च करें, लेकिन इस गरज से खर्च करें कि वो पैसा उस लड़के की फरमाबरदारी का सबब बन जाए। अल्लाह हाफिज। और अगर वो ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी मिलेगी। दूसरा दायरा क्या है? दूसरा दायरा यह है कि बच्चा नाफरमान तो नहीं है लेकिन वो अपने बड़ों की बात नहीं सुनता है, उनकी राय कुछ और है, उसकी राय कुछ और है, उनके सामने वो मुखालिफत भी नहीं करता है और उनकी बात को तस्लीम भी नहीं करता है। तो ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की ख्वाहिश को समझने की कोशिश करें। अगर उसकी ख्वाहिश गलत नहीं है तो उसे तरजीह दें अपनी ख्वाहिश के बजाय। उसके फील्ड को समझने की कोशिश करें, उसके तय ये महसूस करें कि वो बड़ा हो गया है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी बात को समझने की कोशिश करें और उस एतबार से उसको गाइड करें। क्योंकि उसके अंदर अगर फरमाबरदारी है, सामने मुखालिफत या इनाद और टकराव नहीं है तो इसका फायदा उठाएं और उसके मुस्तकबिल के लिए अपनी प्लानिंग को उसके सामने नुमाया करें, वाज़ेह करें। अगर ऐसा करने में आप कामयाब होंगे तो आप ऐसे बच्चों की तरबियत भी कर सकेंगे और उन्हें सही रास्ता दिखा सकेंगे। तीसरे वो बच्चे हैं जो फरमाबरदार भी हैं और जो बच्चे आपकी बात सुनते भी हैं लेकिन वो अमल नहीं करते हैं, वो उस पर पूरे नहीं उतरते हैं। आपके दिए हुए प्लान पर वो चलना चाहते हैं, चलकर दिखाना भी उनका एक बज़ाहिर अंदाज होता है लेकिन उस नतीजे तक नहीं पहुंच पाते जहां आप उनको ले जाना चाहते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे काहिल होते हैं, ऐसे बच्चे अक्सर बहानाबाज होते हैं, बहाने करते हैं, तरह तरह की चीजें लेकर आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत जरूरत है कि उन्हें उससे निकाला जाए, उनके अंदर चुस्ती लाई जाए, उनका साथ दिया जाए, उनके लिए ऐसी चीजें डिजाइन की जाए, ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं जिससे वो चुस्त फुर्त हो जाएं, उनके कुछ दिलचस्पी की चीजें लाई जाएं, उनको एक्टिव करने की कोशिश की जाए। सब कुछ उनके अंदर अच्छा है, जो कमी है उस कमी पर निगाह रखी जाए। एक दायरा और है खास तौर पर उन बच्चों के तई जो बच्चे कि माँ बाप के साथ हैं, सब कुछ सही है लेकिन वो अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं। वो इस तरह चलते हैं कि जैसे माँ बाप से उनको बहुत ज्यादा कोई वास्ता नहीं होता, वो नाफरमान नहीं है। ये दायरा भी बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी सूरत हाल में बच्चों को चाहिए, बच्चों को डील करने के लिए चाहिए कि माँ बाप उनको अपने साथ मुख्तलिफ महफिलों में ले जाएं, इसलिए कि बच्चे को आपके जरिए सीखने का मौका मिलेगा। बच्चा आपके जरिए जानेगा, आपके जरिए बच्चा समझने की कोशिश करेगा। तो अगर इन चारों दायरों को हम सामने रखें, चार किस्म के बच्चों को हम सामने रखें, तो हमारे सामने जो चीज आती है जो सबके लिए बहुत मुफीद है कि हम बच्चों को समझने की कोशिश करें। आज के जमाने में बच्चों को ना समझना ये सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चों को बगैर समझे डील करना ये उससे बड़ी गलती होती है। बच्चों पर उनके मुस्तकबिल की तय फिक्रमंदी का इजहार करना लेकिन फौरी तौर पर उनकी क्या सूरत हाल है इस पर गौर न करना, यह सबसे बड़ी कमी होती है। बच्चों के सामने अच्छे मॉडल्स का जिक्र ना करना, अच्छे लोगों का जिक्र ना करना, उनके सामने खुद अपने आप को अमली ना बनाना, यह बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। एक उसकी छोटी सी मिसाल रखें आप सामने और गौर करें तो आपको लगेगा कि यह कमी तो सभी के अंदर पाई जाती है। बड़ों के अंदर यह बहुत बड़ी कमी है कि वो अपने घर में अपने रिश्तेदारों की बुराई करते हैं, अपने घर में अपने दोस्तों की बुराई करते हैं, अपने घर में अपने मिलने जुलने वालों की बुराई करते हैं और फिर वो तवक्को रखते हैं
कि उनका बच्चा अच्छी चीजें सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आप कोशिश करें कि अपने घर में बुराई का जिक्र कम से कम हो, अच्छाइयों का जिक्र हो। बुराई वही जिक्र की जाए जिससे बच्चे को बचाना मकसूद हो, यानी बुरे अंजाम का तज़किरा हो। किसी की बुराई ना की जाए। बहुत सारे तारीख में वाकयात हैं, बहुत सारी शख्सियात हैं जो बच्चे के सामने कभी नहीं आएंगी, उनके बुरे अंजाम को बच्चों के सामने लाकर पेश किया जाए, उसे दिखाया जाए उनके सामने, उसे पेश किया जाए उनके सामने, तब जाकर के बच्चों को सही तरबियत मिलेगी और उन्हें रहनुमाई मिल सकेगी। आजकल बच्चों की तालीम को लेकर भी माँ बाप के सामने बड़े मुश्किलात होते हैं। ऐसे माँ बाप जिनके पास पैसा भी है, इम्कानात भी है, लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। इस सिलसिले में जो तजर्बात सामने हैं, अगर उन्हें सामने रखकर बात करें आपसे, तो हमारे माँ बाप को या गार्जियन को, मैं माँ बाप के साथ गार्जियन को भी शरीक करता हूं। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, उनके घर में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो गार्जियनशिप का फरीजा अंजाम देते हैं, माँ बाप से हटकर, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनकी बहनें हों, चाहे उनके वालिद हों, चाहे उनका कोई रिश्तेदार हो, वो लोग गार्जियनशिप लेते हैं और अच्छे गार्जियन होते हैं। उन सब के लिए बात है कि अगर बच्चा पढ़ने में आपको नाकाम दिख रहा है तो आप उसकी वजह तलाश करें। उसकी वजह कौन बतलाएगा? उसको पढ़ाने वाला बतलाएगा। आप जरा कभी गौर करें कि आप क्या अपने बच्चे के उस्ताद से मिलते हैं? आपके बच्चे को कभी यह लगता है कि आपने उसके पढ़ाने वाले से मशवरा किया? कभी आपको ऐसा लगा कि आपने बच्चे को यह महसूस कराया कि हां, तुम्हारे तालीम के तई तुम्हारा सोचना यह है और मैं इस तक पहुंच गया हूं, तुम्हारा सोचना सही है या गलत है, मुनासिब है या गैर मुनासिब है, मुफीद है या गैर मुफीद है। तो तालीम के बारे में हम आम तौर पर दूसरों के दिए हुए मशवरों को अपने बच्चों पर लागू करना चाहते हैं, दूसरे मॉडल्स को अपने बच्चों पर थोपना चाहते हैं। आपका बच्चा किस तरह है, कैसा है, उसे समझने की जरूरत है। और अगर कहीं समझने में दिक्कत आए तो आप ऐसे लोगों से मिलें जो कैरियर को समझते हैं, जो कैरियर गाइडेंस का काम करते हैं, जो बच्चों के नफ्सियात को सामने रखकर उन्हें सही रहनुमाई दे सकते हैं। ये काम आज का सबसे बड़ा काम है।